Hello, dear friends. Uh, I welcome you all. Today, we will talk about the features of ballad. In the last lecture, we knew about what is ballad and what are some of the features. So, remaining features and how ballad is used in particular poetic form that has to be learned in this lecture. So, let us start without delay. We already knew what is meant by ballad. Ballad is a story. Ballad is a song which has to be narrated through a story. बैलेट ये कहाँ से डिराइव हुआ लैटिन लैंग्वेज से बैलरे टू डांस है इसका मीनिंग है ये भी हमने जाना है 1000 ईयर्स एगो इसका ओरिजिन है ये भी हमने जाना है और 19th सेंचुरी में इन द 19th सेंचुरी इट वाज वेरी पॉपुलराइज्ड इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड दिस हैज टू बी ओवर आई टोल्ड यू अबाउट स्टॉक एपिथेट इज एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज कि जो यूज हो सकता है पर्टिकुलर टाइटल के लिए. Next one is use of repetition. So use of repetition uh, in the form of refrain. So actually ये refrain जो है we will know about refrain. यहाँ पर refrain हम जानेंगे when you were in 11th or 12th that time you had one poem the person I'm looking for, okay, by written by Hazara Singh. So in that particular poem the last line of each stanza repeated like the person I'm looking for, you may be the person I'm looking for, you may be the person I'm looking for, like this, okay. So that repetition can be called refrain, okay. So let us see that too with the example. We will click here and then we will redirect it to that particular link. Let us start. Just a minute. So this is the poem written by Hazara Singh, that is the person I'm looking for. Now see, look, this is the stanza number 1 and the line you can see over here. ये आप line भी यहाँ पर देख सकते हो. Just a minute. Yeah, got it. This is the line. You may be the person I'm looking for. Okay. The first stanza's last line is you may be the person I'm looking for. अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और देखेंगे. Just a minute. Okay. ये आ गए ऊपर. ये आप देख सकते हो. You may be the person I'm looking for. Again the same line is repeated. अभी और ऊपर जाएंगे. ये थर्ड स्टांजा है और ये देखो you may be the person I'm looking for आ गया. अभी और ऊपर जाएंगे. ये देखो ये लास्ट स्टांजा है और you are the person I am looking for. मतलब इस सभी स्टांजाज में एक लाइन एक पर्टिकुलर फ्रेज जो है लाइन जो है वो रिपीट हो रही है. इसे कहते हैं रिफ्रेन. इट इज कॉल्ड रिफ्रेन. आई होप यू आर गेटिंग मी. इट इज कॉल्ड रिफ्रेन. सो दिस रिफ्रेन is one of the characteristics of this ballad, okay, one of the feature of this ballad. I hope you are getting me. This is repetition in the form of refrain. The next thing is very important over here. The verse consist of quatrain with alternative iambic tetrameter, that is 4 foot, and the trimeter, that is 3 foot. So verse consists of a quatrain with alternative iambic tetrameter. तो वर्स जो है इसमें पहले क्वाट्रेन रहेगा, उसके बाद में वो जो रहेगा क्वाट्रेन इट इज विथ दिस पर्टिकुलर टेट्रामीटर एंड देन ट्राईमीटर. तो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट एग्जांपल. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो. You can refer actually the page number 134 for this.
आप इसके लिए पेज नंबर 134 भी रेफर कर सकते हो। There lived a wife in Urshwell. So 1 2 3 and 4 इस लाइन में 4 फीट है, 4 फुट है एक्चुअली, and a will, and actually there is and a, यहाँ पर and a well, thy wife was she। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। नाउ नेक्स्ट, she had 3 stot and stall Watsons। तो 1 2 3 and 4। नेक्स्ट देखेंगे, and sent them over the sea 1 2 and 3। तो ये देखो, इसमें है 4 फीट, इसमें है 3 फीट, इसमें है 4 फीट, इसमें है 3 फीट। तो 4 3 4 3 अल्टरनेटिवली यहाँ पे 4 फीट, अल्टरनेटिवली इसमें 3 फीट, अल्टरनेटली इसमें 4 फीट, अल्टरनेटिवली इसमें 3 फीट। सो दिस इज एक्चुअली दी व्हाट वी कॉल, इट इज, ये जो है ये 4 फीट वाला इसे कहेंगे हम क्वाट्रेन। ओके, और इसे हम टेट्रामीटर भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एक्चुअली क्वाट्रेन, मतलब 4 लाइन की ये जो, जस्ट अ मिनट, ये जो है ये 4 लाइन की पर्टिकुलर स्टांजा है। तो इस स्टांजा में ये जो है पहला वाला इसे कहेंगे हम टेट्रामीटर। टेट्रामीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है इसलिए। और ये जो दूसरा जो है इसे कहेंगे हम ट्राईमीटर। ओके, तो इट इज कॉल्ड टेट्रामीटर, और इसे कहेंगे हम ट्राईमीटर। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। टेट्रामीटर का मतलब है 4 और ट्राईमीटर का मतलब है 3 फीट होना। ओके, ये 4 लाइन की पर्टिकुलर स्टांजा है, और इस 4 लाइन के स्टांजा को हम कहते हैं क्यू यू क्वाट्रेन कहते हैं इसे एक्चुअली, क्यू यू ए टी आर ए आई एन। ओके, इट इज कॉल्ड क्वाट्रेन। तो इसे कहते हैं क्वाट्रेन। एंड ये 4 लाइन, 4 इसमें डिवाइड किया है, 4 फुट में डिवाइड किया इसलिए इसे टेट्रामीटर, ये 3 फीट में डिवाइड किया इसलिए इसको कहते हैं ट्राईमीटर। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके, नाउ द राइमिंग स्कीम, ये हो गया। द वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ क्वाट्रेन, मतलब जो कविता की लाइंस रहती है, वो स्टांजा जो है वो 4 लाइन का स्टांजा रहेगा, क्वाट्रेन रहेगा। ओके, इट इज कंफर्म्ड, ये हो गया। उसके बाद में पहली जो लाइन रहेगी उसमें 4 पर्टिकुलर फुट रहेंगे, उसे टेट्रामीटर कहते हैं। दूसरी जो लाइन रहेगी उसमें 3 रहेंगे, उसे ट्राईमीटर कहते हैं। इट इज ओवर। अभी जानेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम एक तो एबीसी भी हो सकता है या फिर एबीए भी हो सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू विद द एग्जांपल। ओके, एक तो राइमिंग स्कीम क्या चाहिए हमें, एक तो एबीसीबी या फिर एबीएबी। ओके, तो लेट अस सी व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड हियर। वेल, इसको देंगे हम ए। शी, वेल और शी मैच नहीं होते इसलिए इसको हम देंगे हम बी। सन्स, वेल शी सन्स मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए हम इसको देंगे सी। और वेल शी सन्स सी, तो ये शी और ये सी, ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसको बी दिया है, यहां भी हम देंगे बी। तो राइमिंग स्कीम इज ए बी सी एंड बी। ये हो गई अपनी राइमिंग स्कीम। सो और राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। सो आइदर, एक तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी रह सकती है, या फिर राइमिंग स्कीम ये अगर नहीं है तो दूसरी राइमिंग स्कीम रह सकती है ए बी ए बी। ओके, इट इज और। सो स्टांजा फॉर्म में अगर हम देखेंगे, सो इट इज एक्चुअली फिक्स्ड that rhyming scheme will be ABCB or
ए बी ए बी। इसके 4 फीट, इसके 3 फीट, इसे हम टेट्रामीटर कहेंगे, इसे हम ट्राईमीटर कहेंगे, और ये भी फिक्स्ड है कि 4 लाइन का स्टांजा चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि बैलेड सिर्फ स्टोरी ही नैरेट नहीं करता, बैलेड स्टोरी नैरेट करने के साथ साथ उसका राइमिंग स्कीम फिक्स्ड है, उसका स्टांजा फॉर्म फिक्स है, उसका इसमें 4 फीट होना है, इसे टेट्रामीटर कहेंगे, फिक्स है। इस यहाँ पर 3 फुट चाहिए, इसे ट्राईमीटर कहेंगे, ये भी फिक्स्ड है। सो इट इज फिक्स्ड कि क्या क्या रहेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेड। और ये सब चीज मिला के ये बैलेड होता है। सो आई होप यू आर गेटिंग मी। ये और एक बार जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट इज मीन बाय बैलेड। बैलेड इज अ सॉन्ग विच नैरेट्स अ स्टोरी। बैलेड ये ऐसा सॉन्ग है कि जो स्टोरी नैरेट करता है। अभी बैलेड को गाने के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेड जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये इंग्लैंड का नहीं है, ये लैटिन से आया है। कई कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये फ्रेंच से भी आया है। कुछ लोग में actually there is different opinions by different persons. So some of the person says it is from Britain, some of the person says it is from uh, लैटिन। सो लैटिन इससे आया है, और इसका मतलब है बैलरे, उसका मतलब है इंग्लिश में डांस करना। बहुत सालों के पहले जब लोग लिटरेट भी नहीं हुए थे तब से ये चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिफ्रेन होता है, इट इज रिफ्रेन मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टांजा खत्म हो गया तो फिर जैसे हमारे मूवी के सॉन्ग्स होते हैं, एक स्टांजा खत्म हो गया तो पहले पहले की जो 2 लाइन होती है वो रिपीटेट होती है, फिर दूसरा स्टांजा खत्म हो गया, भाई पहले की 2 लाइन रिपीट होती है, तीसरा स्टांजा खत्म हो गया, फिर पहले की 2 लाइन रिपीटेड होती है। उसे मराठी में ध्रुवपद भी कहा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैलेड। सो दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट बैलेड। एंड ये भी हमने जाना कि 4 लाइन ही रहनी चाहिए एक स्टांजा में, और पहली जो है वो पहली लाइन 4 हिस्सों में बटी होगी, उसे टेट्रामीटर कहेंगे। दूसरी लाइन 3 हिस्सों में बटी होंगी, उसे ट्राईमीटर कहेंगे। राइमिंग स्कीम एक तो हमें एबीसी भी चाहिए या फिर एबी ही चाहिए। ओके, सो माय फ्रेंड्स, विद दिस I stop here, and I hope you understood what is ballad and what are the features of ballad. With this, I stop here. Thank you very much.